پاکستان نے امریکی نشریاتی ادارے CBS نیوز کی رپورٹ مسترد کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق رپورٹ میں نور خان ایئر بیس پر ایرانی طیاروں کی موجودگی سے متعلق گمراہ کن اور سنسنی خیز دعوے کیے گئے۔ جنگ بندی اور اسلام آباد مذاکرات کے دوران ایران اور امریکہ کے متعدد طیارے پاکستان آئے۔ پاکستان میں موجود ایرانی طیارے جنگ بندی کے دورانیے میں آئے تھے۔ ایرانی طیاروں کی آمد کا مقصد کسی بھی فوجی ہنگامی صورتحال یا حفاظتی انتظام سے کوئی تعلق نہیں۔ حقائق کے برعکس تمام دعوے محض قیاس آرائیاں، گمراہ کن اور حقائق سے مکمل طور پر لا تعلق ہیں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات ہوں گے یا معاملہ جنگ کی طرف بڑھے گا؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں اہم سیکیورٹی اجلاس آج طلب کر لیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق اجلاس میں تہران کے خلاف آئندہ حکمت عملی پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں محدود فوجی کارروائی سمیت مختلف آپشنز زیر بحث آنے کا امکان، پروجیکٹ فریڈم بحال کرنے یا ایران میں بقیہ اہداف پر حملوں کے امور پر بھی غور ہوگا۔ ایرانی عوام کے حقوق قبول کرنے کے سوا کوئی متبادل نہیں۔ 14 نکاتی تجاویز میں درج ایرانی عوام کے حقوق کا مطالبہ کیا گیا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف نے کہا، کوئی بھی دوسرا راستہ مکمل طور پر غیر نتیجہ خیز ہوگا۔ امریکہ کے لیے ایک کے بعد دوسری ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ۔ نیشنل پولیس اکیڈمی میں محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس۔ نیشنل پولیس اکیڈمی میں زیر تعمیر کثیر المنزلہ ہاسٹل کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے ایلیٹ پولیس ٹریننگ سکول کے منصوبے کو 31 مئی تک مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ کہا، رواں برس سے افسران کی ایلیٹ ٹریننگ صوبوں کے بجائے NPA میں کرائی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو پھر دھمکی۔ کہا، پروجیکٹ فریڈم وسیع پیمانے پر بحال کر سکتے ہیں۔ پروجیکٹ فریڈم کا دوبارہ آغاز ہوا تو زیادہ وسیع ہوگا، صرف جہازوں کو نکالنے تک محدود نہیں رہے گا۔ ایران کی نئی تجویز احمقانہ ہے۔ معاہدے تک ایران پر دباؤ ڈالتے رہیں گے۔ ایران یقینی طور پر ہتھیار ڈال دے گا۔ چین کو ضامن بنانے کی تجویز دے دی۔ چین میں ایران کے سفیر عبدالرضا رحمانی فضلی کا کہنا ہے، چین ممکنہ معاہدے کا ضامن ہو سکتا ہے۔ معاہدہ بڑی طاقتوں کی ضمانتوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ چین اور روس دو بڑی بااثر طاقتیں ہیں۔ ایران امریکہ معاہدے پر سلامتی کونسل میں بھی بات ہونی چاہیے۔ ایران یورینیم کی افزودگی عارضی طور پر روکنے پر آمادہ ہو گیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ اخبار کے مطابق ایران نے امریکہ کا 20 سال تک یورینیم افزودہ کرنے کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ جنگ بندی اور آبنہ ہرمز مرحلہ وار کھولنے کی تجویز دی۔ ایران کا امریکی پابندیاں اور بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ۔ غیر معقول امریکی مطالبات قبول نہیں کریں گے۔ اگر ایران پر جنگ مسلط کی گئی تو پھر بھرپور جواب دیں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا امریکی صدر کے بیان پر سخت رد عمل۔ کہا، تہران صرف اپنے حقوق کے تحفظ کا خواہاں ہے۔ ایران کے خلاف جنگ کا خاتمہ اور آبنہ ہرمز کھولنا جائز مطالبہ ہے۔ صدر آصف زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ ملکی مجموعی صورتحال، افغانستان میں سے متعلق امور اور خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ مارکہ حق کے شہداء اور مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ قومی دفاع پر غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر قانون اعظم نذیر تاڑڑ اور رانا ثناء اللہ کی شرکت۔ صدر مملکت کی مہنگائی میں کمی اور عام آدمی کو ریلیف دینے کی ہدایت۔ پیٹرول اتنا مہنگا کیوں ہے؟ خود حکومت نے اعتراف کر لیا۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا کہنا ہے کہ حکومت 1 لیٹر پیٹرول پر 128 روپے لیوی ٹیکس لے رہی ہے۔ IMF سے پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی 80 روپے طے ہے۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ اجلاس سے پہلے لیوی لگانا ضروری تھا۔ وزیر اعظم نے وقتی طور پر IMF سے گنجائش نکالی تھی۔ اگر IMF کا پروگرام خطرے میں پڑتا تو اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सेनेट की कायमा कमेटी में गर्मा गर्म बहस। दौरान इजलास सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो फट पड़े। कहा 28 फरवरी से पहले पेट्रोल का 5,80,000 टन स्टॉक मौजूद था। जंग के फौरी बाद पेट्रोल और डीजल 55 रुपए महंगा कर दिया गया। ये मुनाफा पेट्रोलियम कंपनी को सस्ते तेल पर मिला। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की वजाहतें। कहा मुल्क में तेल के ज़खायर बरकरार रखना थे। इस मामले को FIA भी देख रहा है। हो सकता है कुछ दिन बाद मुल्क में DAP दस्तयाब ना हो। वजारत पेट्रोलियम ने खतरे की नई घंटी बजा दी। हुकाम के मुताबिक मुल्क में DAP की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला खाम माल मौजूद नहीं। DAP का खाम माल आबनाए हरमुज के जरिए आता है। इस वक्त ज्यादा बड़ा क्राइसिस फूड सिक्योरिटी का है। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की वजीर आजम से बात करने की यकीन दहानी। बन्नू में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम। अफगान नाज़िम उल अमूर को डिमार्च जारी कर दिया। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान ने अफगान नाज़िम उल अमूर पर वाज़े किया कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नहीं होगा। 9 मई के दहशतगर्द हमले में 15 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। अजरबैजान की बन्नू दहशतगर्द हमले की मजम्मत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को अजरबैजान के हम मनसब का मुरासला। पाकिस्तानी अवाम और मुतासरा खानदानों से इजहार यकजहती। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर कोशिशों की मुस्तकिल हिमायत करते हैं। बच्ची है, ये एक सुसाइड मिशन पे थी। कुछ अर्सा पहले इनका नाम आया था सोशल मीडिया पे कि ये खातून मिसिंग हो गई। पता चला ये जो है फोर्स डिसअपेयर नहीं है, बल्कि ये टेररिस्ट कैंप में अपने खुदकुश की ट्रेनिंग और बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का बर वक्त कार्रवाई थी जिसमें इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और इनका प्लान था इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने का। ये मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तान को इस वक्त जो एक टेक ऑफ मिला हुआ है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, उसको किस तरीके से सबोटाज किया जाए। इंडियन रॉ जो है वो इसके पीछे है। इस्लामाबाद बड़ी तबाही से बच गया। बलूचिस्तान से खातून खुदकुश बमबार गिरफ्तार। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की कोयटा में खातून खुदकुश बमबार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमारे साथ बैठी खातून खुदकुश हमले के मिशन पर थी। खातून खुदकुश हमलावर को इस्लामाबाद में हमले का हदफ दिया गया था। इंटेलिजेंस एजेंसी ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दी के मंसूबे को नाकाम बनाया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल और पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इसाक डार ने कहा सिफारती कोशिशें अमन के फरोग में मददगार होंगी। इसाक डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। ईंधन की बचत के लिए नाफिज पाबंदियों में 13 जून तक तोसी। सरकारी गाड़ियों के लिए ईंधन में 50% कमी बरकरार। 60% सरकारी गाड़ियां बददस्तूर बंद रखी जाएंगी। कतर से पाकिस्तान के लिए तीसरा LNG जहाज आबनाए हरमुज में दाखिल। जहाज आबनाए हरमुज के जजीरे हंगम से आगे बढ़ रहा है। जहाज में कतर की रास लिफान टर्मिनल से LNG भरी गई। दरामदी LNG एंग्रो टर्मिनल पर लाई जा रही है। LNG का पहला जहाज पोर्ट कासिम पर 30 अप्रैल को लंगर अंदाज हुआ। This House remembers with a deep sense of national pride the unmatched professionalism, vigilance, extraordinary preparedness and resolute response demonstrated by the Pakistan Armed Forces on May the 10th, 2025 in the face of unprovoked and unwarranted Indian aggression. And the command of Prime Minister Mian Mohammad Shehbaz Sharif and the Chief of Defence Forces Field Marshal Syed Asim Munir launched Operation Bunyanul Marsoos on May the 10th, 2025, delivering a befitting response to this aggression. Commends the bravery and operational excellence of Pakistan Air Force, which swiftly established air
superiority and shot down multiple Indian aircrafts, including the much-hyped and pride of Indian Air Force, the Rafale jets. Extends heartfelt gratitude to every officer, soldier, airman and sailor of the Armed Forces of Pakistan on the battlefield for making Operation Bunyanul Marsoos successfully through their courage, professionalism and sacrifice. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the resolution is adopted. मार्का हक की तारीखी कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। कौमी असम्बली से करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद में मार्का हक में कामयाबी पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया गया। करारदाद के मतन में कहा गया, हमें अपने शहदा पर फ़ख्र है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मार्का हक की करारदाद पेश की। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। मलीर गैरिसन कराची में दिफाई हथियारों और जदीद अस्करी आलात की खुसूसी नुमाइश। अफवाज पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल जदीद दिफाई साजो सामान और जदीद हथियार अवामी मुशाहिदे के लिए पेश किए गए। पंजाब काबीना का मार्का हक की पहली सालगिरह पर फील्ड मार्शल, वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ को खिराज तहसीन। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। चौलिस्तान और कच्चे के शहरियों के लिए अपना खेत अपना रोजगार स्कीम की मंजूरी दे दी गई। कायद आज़म बिजनेस पार्क शेखुपुरा में मजीद 200 एकड़ रकबे की तोसी की मंजूरी भी दी गई। मरियम नवाज ने कहा, जो पंजाब में सनत लगाना चाहता है उसकी मुआवनत करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में खुसूसी इजलास। इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला ने सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स की तज़ीनो आराइश और अपग्रेडेशन के काम का मुआयना भी किया। इजलास के दौरान फ्यूजन सेंटर और जदीद कंट्रोल रूम के क़याम से मुताल्लिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब के स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान। सूबाई वज़ीर तालीम ने 3 माह की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। आगाज़ 22 मई से होगा। छुट्टियों के बाद दोबारा स्कूल 24 अगस्त को खुलेंगे। पंजाब काबीना ने भी छुट्टियों की मंजूरी दे दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर बुध को बीजिंग पहुंचेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक जुमेरात की शाम ट्रंप को इशारा दिया जाएगा। चीन के साथ मुश्तरका तिजारती सरमायाकारी बोर्ड पर काम होगा। चीन अमेरिका एरोस्पेस, ज़राअत और तवानाई के शोबों में दीगर अहम उमूर पर बातचीत करेंगे। बरतानवी लोकल बॉडी इलेक्शंस में लेबर पार्टी की शिकस्त के बाद वज़ीर आज़म कीर स्टारमर पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ गया। बरतानवी वज़ीर दाखिला समेत 70 काबीना अरकान का वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। बरतानवी अखबार ने दावा किया कि नायब वज़ीर आज़म डेविड लेमी ने वज़ीर आज़म स्टारमर ओहदा छोड़ने की टाइमलाइन दे। बरतानवी 5 पार्लिमानी सेक्रेटरीज ने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया। ढाका टेस्ट का आखिरी रोज बांग्लादेश 152 रन से इनिंग्स का आगाज करेगा। बांग्लादेश को पाकिस्तान पर 179 रन की बरतरी हासिल है। मेजबान साइड की अभी 7 विकेटें बाकी हैं। शाहीन आफरीदी, अब्बास और हसन अली ने एक एक विकेट ली। और कायनात में इंसान का मस्कन तब्दील करने का खुफिया मिशन, साइंस फिक्शन फिल्म सिग्नल 1 की झलकियां जारी कर दी गई। फिल्म रवा बरस 6 जून को रिलीज हुई।